سیلاب کا پانی اتر گیا مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی، سیلابی پانی کے باعث گھر بھی گر گئے، فصلیں برباد ہو گئیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، سیلاب کا پانی اتر گیا مگر متاثرین کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ملتان میں سیلاب متاثرین کی گھروں کو واپسی، سیلابی پانی کے باعث گھر بھی گر گئے، فصلیں برباد ہو گئیں۔ متاثرین کا اس حوالے سے کیا مطالبہ ہے، جانتے ہیں جنید انور سے۔ آج بالکل اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے کہ پانی تو کم ہونا شروع ہوا ہے، جو خاص طور پر جو رقبے تھے جہاں پر جو ہے کاشت کی گئی تھی، وہ جو ہے اس ٹائم یہ صورتحال ہے کہ یہ جو ہے وہ بغیر سٹک کے یہاں پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہے۔ اور یہ چونکہ جہاں اس وقت موجود ہے، یہ اس جہاں پر سیلاب آیا اس میں تھوڑا سا قدرے اونچا علاقہ ہی تھا، اونچائی پر موجود تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ پانی کسی حد تک خشک ہوا ہے۔ اور یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پر ابھی تک پانی موجود ہے، اور یہ سارا جو ہے یہاں پر اس پورے ایریے کے اندر جو ہے وہ جوار کاشت کی گئی تھی، اور جو جوار کی وجہ سے جو ہے وہ ساری جوار جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم پانی کی صورتحال دیکھیں تو یہ جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی بھی پانی اس کے اندر جو ہے موجود ہے، مطلب بند کے ساتھ ساتھ جو پانی جو ہے وہ دو سے ڈھائی فٹ کے قریب موجود ہے، اور اسی طرح درمیان کے اندر جو ہے وہ پانی زیادہ موجود ہے۔ بات کی جائے جوار کی جو فصل تھی وہ مکمل طور پر یہاں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ اگر گھر دکھائیں تو سامنے یہ کھجور کا باغ ہے، جس کے اندر جو چھوٹے پودے تھے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس ٹائم خراب ہو چکے ہیں، اور جو گھر کی دیوار تھی وہ بھی گر چکی ہے، اور یہ ساتھ ایک جو چھوٹا کمرہ اور بنایا گیا ہے مالک کی جانب سے، اس کی دیوار کے اوپر بھی سیم آ گیا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ کیا صورتحال رہی، کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں یہاں صاحب پر فصل تھی، ساتھ پانی میں تباہ ہو گئی ہے، یہاں پہ صاحب کے گھر بھی پانی میں گر گئے ہیں، بہت نقصان ہوا یہاں پر۔ تو یہاں کیا کاشت کیا ہوا تھا؟ یہاں پر جوار تھی اور بہت کچھ تھا، وہ سب فصل نہ پانی میں تباہ ہو گئی ہے، سب جوار گھاس تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، سب ختم ہو گئے۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو ہے جی وہ کچھ ہمیں جوار کے جو ہے وہ آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور جو ان سیلابی علاقوں میں مسئلہ ہے کہ یہ پانی کا جو کلر ہے وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ وہ جو ہے کسی وقت جو ہے وہ یہ ایک بڑی بیماری کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہونے سے جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے، اور یہ مختلف قسم کے پانی کے اوپر جو ہے وہ جو کیمیکلز اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے اور پودوں کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی۔ یہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہ پانی بھی سیاہ اور کالا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ زمین کی ساخت کو بھی خراب کرتا ہے اور زمین کی نمکیات کے حوالے سے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آگے کی طرف جائیں تو یہ پلرز کچھ جو ہے آگے کی طرف جانا مشکل اس لیے ہے کیونکہ یہ اس ٹائم گارا شدید ہے، اور پاؤں جو ہے وہ اندر دھستا ہے، اور بغیر سہارے کے یہاں سے گزرنا مشکل ہے۔ یہ وہ پلرز تھے جو کہ کسی بھی زمین کے درمیان لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کی شناخت ہو سکے، یہ بھی بارش کے اندر بہہ چکے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جو چھوٹے پودے تھے، جس طرح یہ سامنے ایک پودا موجود ہے، یہ بارش کی وجہ سے خراب ہوا، اور یہ مکمل طور پر اس پورے ایریے کے اندر جو ہے وہ جوار کاشت کی گئی تھی، مگر جوار جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، گھاس جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ مزید بھی بات کریں گے، اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو اس ٹائم جو اس طرف اگر ہم آئیں تو بند کے دوسری جانب تو یہ لیئرز جو اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں، یہ زمین کی ساخت کے لیے انتہائی جو ہے وہ خطرناک ہے۔ خطرناک سے مراد یہ ہے، اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے کہ یہ آئندہ زمین کی پیداوار پر بڑا اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ فنگس جو ہے یہ زمین کی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیداوار کے اندر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر لوگ واپس منتقل ہونا چاہتے ہیں، مگر ابھی بھی ایسی صورتحال کے اندر بھی جہاں پر 2 سے 2.5 فٹ جو ہے وہ پانی اونچے مقام پر موجود ہے، جبکہ درمیان کے اندر پانی کی صورتحال اور ہوگی اور اس سے آگے پانی کی صورتحال اور ہوگی۔ لوگوں کے گھروں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے سامنے اگر کیمرہ مین دکھائیں جس کو تالا لگا ہوا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کے گھر کی جانب بھی جائیں اور قریب سے بھی جو ہے وہ صورتحال دکھانے کی کوشش کریں، اور راستہ اگر ہمیں ملے اور ہم آپ کو دکھائیں کہ اس کی جو دیوار ہے وہ اب گرنا شروع ہو گئی ہے۔ دیوار اس لیے گرنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ پانی کا جو سیم ہے وہ اس کی دیوار پر چڑھ چکا ہے، جس کے باعث وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ سامنے کی اگر دیوار دکھائیں تو وہ جو ہے وہ مکمل طور پر اینٹوں کی دیوار جو ہے وہ گر چکی ہے۔ تو یہاں پر یہ صورتحال ہے، لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں جہاں پر، اور خاص طور پر جو ہے وہ جو کسان طبقہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے، اور یہاں پر یہ صورتحال ہے
कि ये छोटे छोटे जो ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये एक बाग था जहां पर मौसमी के जो थे, मतलब दरख्त बाग लगा हुआ था, और ये वो उसकी ये सूरत हाल है कि ये उसका जो फल है वो मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुका है। ये यहाँ पर सूरत हाल है। इसके साथ साथ चूँकि सैलाब के साथ तबाहकारियाँ भी हैं, तो जूता किसी का मौजूद है। सूरत हाल ये बताती है, एक बोतल के अंदर हमें दूध जो है वो नज़र आ रहा है, और ये सूरत हाल है। ये चूँकि हम ऊंचाई पर मौजूद हैं और अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ से आपको वो घर का मनाजर दिखाते हैं कि जिस घर के अंदर सैलाब मुतासरीन जो छोड़ के गए, ये वो घर है जी, और जिसको अभी ताला लगा हुआ है, और उसकी दीवार की सूरत हाल ये है कि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। और ये एक नई कंस्ट्रक्शन हुई है। अगर नई कंस्ट्रक्शन की आपको सूरत हाल दिखाएं तो नई कंस्ट्रक्शन के अंदर ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो जो उसकी जो सूरत हाल है कि वो सीमेंट जो है वो बैठ रहा है, किसी वक्त इमारत जो है वो ज़मीन बोस हो सकती है जी। तो ये यहाँ पर तबाही के जो है वो मनाजिर हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। सैलाब के बाद बस्ती चाह टालीवाला के घर मलबे का ढेर हो गए। बस्ती चाह टालीवाला में 200 से ज्यादा घर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। जो घर आबाद और खुशहाल हुआ करते थे वो आज सुनसान और वीरान पड़े हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी फराज, अपडेट कीजिएगा। सैलाब के बाद मुतासरीन के घर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं और मलबे का ढेर जो है वो हो चुके हैं। मैं इस वक्त बस्ती चाह टालीवाला में मौजूद हूँ। बात करते चलें तो इस बस्ती में 200 से ज़ायद घर थे जो कि मुकम्मल तौर पर सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन जैन सुहेल अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेड़ा कल को आबाद और खुशहाल था वो आज सुनसान और वीरान है। और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है। दरवाजे टूट चुके हैं, घर की दीवारें जो 4 दीवारें थी वो टूट चुकी है और कमरे भी जो है वो गिर चुके हैं। ये एक दरवाज़ा भी टूट गया, ये जो 4 दीवारी थी वो भी गिर गई है। क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, कैसे आप बनाएंगे इसको? बाबा कैसे बनाएगा, गरीब बंदे हैं, मजदूर लोग हैं। ये सब्जी गिर गई है, बड़ी चिट्टी दाढ़ी हो गई है, बनाने हूँ गिर गई है। हूँ बच्चे बाहर बैठे अंदर बांध का दिल नहीं करेंदा, और क्या करूँ, इतना पैसा कौन जला कर लाऊं। किधर पड़ा है आपका और कैसे सामान अपना कोई नहर रखा हो, अगर कोई जगह कोई नहीं रखने देता, अपनी ये जगह है जितने कर खावन पीवन यही रहने रिहायशी है वो खत्म हो गई। जिंदगी की जमा पूंजी थी, ये वेड़ा सुनसान हो गया। अब किसको आबाद कैसे करेंगे? ये ऐसा कैसे करोगे भाई, जब बस अल्लाह ही करेगा, हम क्या करेगा, हम तो कोई इतनी ताकत नहीं है करेगा। ये घर आबाद थे आज वीरान है। अफसुर्दा तो होते होंगे, गमगीन होते होंगे इस घर को इस तरह मलबे का ढेर होता वो देख के। आपकी खून पसीने की कमाई थी ये। तो क्या करोगे, कोई चीज नहीं सारे को, सारे घर सारे ढह गए, फट गए, बाल बारू बैठे हैं सारे, कोई चीज का नहीं देखो बना के कि गुजारा करूँ। कोई ना था को मिली बने ऐसा जाने अपने बच्चे सिर लुकाऊँ, अब खाना ये बच्चे सिर लुकावन, ऐसा बड़े गरीब लोग हैं। तो इनका कहना है कि ज़िंदगी गुजर गई एक घर बनाने के लिए, अब जो है वो घर भी सैलाब की नज़र हो गया। अब पता नहीं कैसे घर बनाएंगे, क्या पता नहीं कैसे जो है वो घर का गुजारा करेंगे। हुकूमत से, इंतज़ामिया से इनका यही मुतालबा है कि इनकी इमदाद की जाए ताकि ये घर की 4 दीवारें एक दफ़ा फिर से बना सकें, तो वेड़ा इनका सुनसान और वीरान हो चुका है उसे एक दफ़ा फिर से आबाद कर सकें। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सैलाब से दीगर नुकसानात के साथ जलालपुर पीरवाला मोटरवे समेत 4 अहम शाहराहों से महरूम हो चुका। मोटरवे उच्च शरीफ, बहावलपुर और परमट रोड सैलाबी पानी से मुतासिर। जलालपुर का बहावलपुर रहीम यार खान से डायरेक्ट जमीनी राब्ता मुनक़ता। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे वक़ास सिद्दीकी। देखिए, मौजूदा सैलाबी सूरत से जहाँ दीगर नुकसानात उठाने पड़े हैं, वहीं पर जलालपुर पीरवाला अपनी 4 अहम शाहराहों से भी महरूम हो चुका है। आज इस वक्त सर फहरिस्त जो है उस शरीफ गिलानी बाईपास रोड है, जिसे शगाफ डालकर जो है बंद कर दी गई थी। ये वो रोड है जो कि जलालपुर पीरवाला को रहीम यार खान से मिलाता है। इस वक्त अगर बात करें मोटरवे के हवाले से, तो मोटरवे की टनल जो कि सैलाब से मुतासिर हुई थी, उसके बाद जो है सड़क का कुछ हिस्सा टूट चुका था और ट्रैफिक जो है वहाँ पर मुकम्मल तौर पर रोक दी गई थी। ये भी वो रास्ता है जो कि जलालपुर पीरवाला को रहीम यार खान से मिलाता है।
اس وقت اگر ہم پنجاب ہائی وے روڈز کی بات کریں تو اس وقت جو ہے وہ بھاولپور اور لودھرا روڈ جو کہ دونوں روڈ جو ہے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں. تقریباً جلال پور پیروالا کا بھاولپور لودھرا رحیم یار خان اشریف اور لیاقت پور سے جو ہے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جلال پور پیروالا کے پاس صرف ایک روڈ ملتان روڈ باقی رہا ہے. اگر ہم نے کہیں بھی جانا ہوگا تو ہم اس روڈ کو استعمال کریں گے. اس وقت جو ہے موٹر وے کی بحالی کے لیے جو ہے کام کیا جا رہا ہے. بھاری پتھر جو ہے ان کی پشتوں پر رکھے جا رہے ہیں, ان کی ٹنلز کو جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے. واحد ایک یہی ٹنل نہیں ہے, باقی جو ہے سیلاب سے. بہت شکریہ وقاص صدیقی آپ کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں ترنڈا محمد پناہ کے نوائی علاقے ٹی بی جھلن منجن بند پر بیٹھے سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار. 10 دن سے زائد کا وقت گزر گیا مگر تاحال انتظامیہ خیمے فراہم نہ کر سکی. مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے غلام علی. ٹبی جھلن کے سیلاب متاثرین منچن بند پر انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن چکے ہیں. متاثرین میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا ان کے مطالبات ہیں. دسے سوسی اتنے لوگ جو احتجاج کرنے پہ انتظامیہ کو کیا شکایات ہیں, کیا مطالبات ہیں؟ بھائی جان سا کو انتظامیہ کو کوئی چیز بھی نہیں ملی, بچے سارے دھوپتے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسا بچے جو ہے اپنے پانی چ باہر کڈ ایسے ہی ٹائم تیک سارے ٹی بی جلان دے جو انتظامیہ ہیں سارے کو شناختی کارڈ سانبھی کھڑے, سا کو شناختی کارڈ واپس نہیں پہ دیں دے. نہ کوئی کنات تبو کنات سا کو کوئی شہر نہیں لاڑتی. اتھا جڑے کو بھی لاڑتے نے اتھا کے بھی سیلاب ہے ٹی بی جلان دے سکول دے وچ. اتھا کے جڑا سارے نال ایو کچھ کھنے تے تساں اتھا کے اٹھی آؤ تو مل سنتا نہیں مل سکدے. باقی اے سارے وچ کوئی راشن کوئی چیز سارے کنے نہیں چلیا ہی ٹائم تک. کیا اپیل کرے سو, کیا مطالبہ کرے سو, کیا تو کو دیتا مطالبہ سارے بچے کو کوئی نہ کوئی شے ملی ونجے, کوئی تمبو ملیا ونجے, کوئی باہر دی جا ملی ونجے, کوئی سکون کرن. ہو دیکھو دھوپ دے اوتے سارے بال بیٹھے ہیں. یہ بالکل سراپا احتجاج ہیں متاثرین. ان کا کہنا ہے کہ 10 دن سے زائد کا وقت گزر چکا ہے, وہ کھلے آسمان کے نیچے منچن بند پر جو ہے دھوپ پر مجبور ہے. کم سن بہت شکریہ غلام علی. اچ شریف میں سیلاب متاثرین کے مسائل جوں کے توں. خیمہ بستی قائم لیکن سیلابی پانی نے پیچھا نہ چھوڑا. خیمہ بستی میں بھی سیلابی پانی داخل ہو گیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے سجاد حسین. بالکل دریائے ستلج, دریائے چناب اور دریائے راوی کے سیلاب کے تباہ کاریاں یہاں پر جگہ جگہ پر نمایاں ہوتی جا رہی ہیں. اس وقت جو ہے ہم موجود ہیں اچ شریف کے نوائی علاقہ بیٹ احمد میں, جہاں پر سیلاب متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم کی گئی ہے. خیمہ بستی تو قائم کر دی گئی ہے, لوگوں کو یہاں پر رہائش دے دی گئی ہے, لیکن یہاں پر جو بنیادی سہولیات ہیں وہ لوگ اس سے محروم ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ اہل علاقہ موجود ہیں. کیا کہیں گے بھائی جان, خیمہ بستی تو لگ گئی ہے, کیا کھانا ملتا پہ اتنا کیری چیز سہولیات انتظام کیمپ تو لگ گئے, کیمپ تو اتنا لاگ ہے, حکومت والی دی مہربانی ہے, لیکن کھانے دی وڈی شارٹیج ہے. نکے نکے سارے بال ہیں, وہ بیمار پین, سارا پانی ہے, نہ رہن دی جائے. پہلے پانی تو تنگ تھی ایسے گھر وغیرہ ڈھائے گئے سارے, کچھ فصلیں تباہ تھی گئے, گھر ڈھائے گئے. کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ تے التجا ہے, ریکویسٹ ہے انہوں نے کہ اتنا آمن سارے نظر ثانی کریں. بالکل ہمارے ساتھ یہاں پر اہل علاقہ موجود ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 5 روز پہلے سے یہاں پر یہ بستی قائم کی گئی ہے, لیکن اب دوسرا دن ہے, یہاں پر پانی آ چکا ہے. ہم یہاں پر جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کو حافظ زدہ قرار دے اور ہمارے بنیادی جو سہولیات ہیں وہ ہمیں میسر کریں, تاکہ ہم جو ہے واپسی اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور اپنی دوبارہ زندگی کو بحال کر سکیں. جی بہت شکریہ سجاد حسین آپ کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں دریا ستلج میں سیلابی صورتحال ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کم. دریا کی طرف سے اترتا پانی تباہیوں کے مناظر چھوڑتا جا رہا ہے. عباس نگر کی بستی کڈن اور بستی مجنو میں بجلی کے کھمبے گر گئے. سڑکیں مکمل طور پر خستہ حال, ساڑی مٹی سیلاب کے ساتھ بہہ گئی. رضا ملک مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. جو ہے فصلیں کے اوپر سے پانی گزر جانے کے بعد اب پانی جو ہے وہ واپس دریا کی طرف جو ہے وہ چلا گیا ہے, لیکن جو ایک تباہی کی داستان رقم کر گیا کہ ہزاروں ایکڑ پر کپاس کی تیار فصل کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے. اور اس وقت ہم موجود ہیں موضع عباس نگر کی آبادیوں مجنو اور دیگر آبادیوں میں, اور اس وقت جو عمومی صورتحال ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو چکا ہے. مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں صحیح, یہ کیڑی وسطی ہے, کیڑی جگہ تے کھڑے ہوئے تے کیا صورتحال ہے, پانی وال گئے, کتنے جوہارا واندہ رہ گئے؟ سارے تقریباً 20 پانی واندہ رہ گئے. یہ وسطی مجنو تے کڈھن پور 2 وستیاں کٹھیاں ہیں. یہ سب زمیندار یا جٹ بھرا صحیح رہنے اس پانی لہ گئے. ہوں وطرا آیا پائن, کوئی مہربانی حکومت کرے سی, کوئی تعاون کرے سی تو بجے سوں نہ تے پائن میں خالی
ना कोई घाय ना गाल ना बात, माल जो है रोही कोट गए हैं। जी बिल्कुल, अमूमी तौर पे जो है वो सूरत हाल यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो गया है और ये लोगों की फसलें हैं, तैयार फसलें थी और इनकी चुनाई का अमल जो है वो जारी था। अगर ये मैप्को का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको नजर आए तो वो भी सैलाब की नजर हुआ हुआ है, मुतासर हुआ हुआ है और बिजली। बहुत शुक्रिया रजा मलिक। बहावलपुर में सैलाब ने ज़राअत से वाबस्ता किसान की कमर तोड़ कर रख दी। 100 से जायद मौजाजात में सैलाबी पानी मौजूद है। महकमा ज़राअत की तरफ से लगाए गए मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासर हुआ है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज में जो सैलाब आया है उसके पेश नज़र किसान जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि किसान की कमर हालिया सैलाब ने तोड़ के रख दी है। मौजूदा जो फसल है वो अब बिल्कुल नकारा हो चुकी है, जो बच चुकी है वो सूख चुकी है और इस वक्त भी फसलों के अंदर 3 से 4 फुट पानी मौजूद है। मेरे अकब में कपास की फसल है, जो कि यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पानी जो है उसका लेवल कम है और फसल बच जाएगी, लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल है। मैं चाहूँगा मेरा कैमरा मैन अकरम शहीन आपको दिखाएगा कि ये फसल जो है मुकम्मल तौर पर सूख चुकी है। जो इसके ऊपर की टहनियाँ हैं वो हल्की फुल्की आपको फ्रेश नज़र आ रही हैं, लेकिन चूँकि नीचे से गल चुकी है तो ये ऊपर वाली जो कपास है ये भी आने वाले दिनों में सूख जाएगी और ये किसी काम के काबिल भी नहीं रहेगी। एक मोहतात अंदाज़ा जो बहावलपुर ज़िला में लगाया गया है कि 1 लाख एकड़ पर मुहित ज़रई फसलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और इस हवाले से सर्वे जो है वो जब पानी उतरेगा तो उसके बाद किया जाएगा। इस वक्त बहावलपुर ज़िला में 100 से ज़ायद मौजाजात ऐसे हैं जहां पर मुकम्मल पानी मौजूद है और फसलें ज़ेरे आब हैं और ऐसी फसलें भी हमने देखी हैं जो कि काफ़ी मुदाफ़ियत रखती हैं पानी के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पर गन्ने की बात की जाए तो इस सैलाब में गन्ना भी ख़राब हो चुका है, चूँकि रेले जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नौयत के थे, बड़े थे और ज़्यादा अरसा तक पानी रुका, जिसके बायस गन्ना जो है वो भी तबाह हो गया है। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? सर जी यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, तकरीबन एक बंदे का 1 मुरब्बा और 10 एकड़ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमें हुकूमत से अपील है कि उन्होंने 1 महीने का बिल माफ़ है, 1 महीने का बिल तो कुछ नहीं है, इस इलाके को आफत ज़्यादा करार दिया जाए और हमारे साथ ताउन किया जाए। आप बताएं जी कितना नुकसान इत्थे होया है? काफ़ी होया। कौन कौन सी फसल थी? मकाई, कपास, कमान। बिल्कुल जी, ये फसलें जो हैं खरीफ की, खास तौर पर कपास की बात की जाए, चावल की बात की जाए, गन्ने की बात की जाए और तिली की बात की जाए तो बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। यहाँ पर आपको बताएं मुल्तान में सैलाब के बाद तबाहकारियां सामने आने लगी। सूरज मियानी, बस्ती संधेला और दीगर मकामात पर जानवरों का चारा गायब। तोड़े की कीमतों में भी पड़ लग गए। 1000 रुपए फी मन फरोख्त होने वाली सैलाब के बायस खरीदार महंगे दामों तोड़ई और चारा लेने पर मजबूर हो गए। मजीद बता रहे हैं अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बात करें, मुल्तान में जो है वो सैकड़ों बस्तियां जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। सैलाब के बायस जो है वो इस वक्त जो तैयार फसलें थी वो भी जो है वो सैलाब की ज़द हो चुके हैं। बात करें अगर हम चारे और तूड़ी के हवाले से तो चारा जो है वो भी मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सूरज मियानी और दीगर मकामात पर जो है वो चारा ना मिलने के बायस जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जानवरों को जो है वो परेशान है कि क्या खिलाएं। रेट के हवाले से भी बात करने के हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप चारा लेने आए और क्या कहेंगे? सर चारा लेने आए, मिला भी नहीं है, ठीक है, कहते हैं 700 मार, हम 700 भी वो भी नहीं मिल रहा, हमें 700 लेने के आए वो भी नहीं है, कहते कि नहीं है। ठीक। अच्छा, पहले क्या चारे कैसे ले रहे थे, कैसे मन ले रहे थे आप? कितने रुपए मन ले रहे? पहले 280 300 का, अब तो 700 के भी देते भी नहीं है, कहते हैं नहीं, मशीन आपके कहते हैं खत्म हो गए। सुबह के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं, कहीं किधर से कहीं से भी मिलता नहीं, हमारा जान भूख के हम क्या करें। अच्छा, तूड़ी के हवाले से क्या कहेंगे? तूड़ी जो है वो पहले कैसे मिलती थी, आप कैसे ले रहे हैं? तो हमारी हुकूमत से अपील है कि ना कि हमें कुछ मतलब कि कुछ किया जाए, हमारे जान भूखे मार रहे हैं, ठीक है, हमें कोई रिलीफ मिला जाए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तूड़ी और चारे के हवाले से तो हमारे साथ बात करने के लिए दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये वजह क्या है, क्यों आपके पास चारा खत्म हो गया, क्या कहेंगे सर? पीछे से नहीं आ रहा, इसी वजह से ख़त्म हो गया, घास पानी की वजह से ख़त्म हो गया, इसी वजह से नहीं आ रहा। क्या कहना चाहेंगे, कितना अरसा हो गया आपके पास चारा नहीं है? तकरीबन 1 माह हो गया, इसी वजह से वो चारा नहीं आ रहा, आता है कम आता है।
जैसे ही फसलें उसकी सैलाब में आई हैं तो उसके बाद जो है वो असरात आना शुरू हो गए हैं। जो क्या कहते हैं चारा है, उसके हवाले से जो है वो चारा जो है वो भी 700 रुपये मन जो है वो मुल्तान शहर में फरोख्त। बहुत शुक्रिया अहमद खान। मुल्तान के खैमों में आबाद सैलाब मुतासरीन की घरों में वापसी का मामला। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी कहते हैं किसी को जबरदस्ती कैंप से नहीं निकाला जा रहा। मुल्तान सिटी में 15,000 लोगों में से 6,000 लोग घरों को वापस जा चुके हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल सैलाब मुतासरीन की वापसी के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं जहाँ पर सैलाबी पानी जो है वो बहुत हद तक कम हो चुका हुआ है, और जो सैलाब मुतासरीन है जो खैमा बस्तियों में आबाद हैं, अब उनकी भी अपने घरों को वापसी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या अब मामलात कर रही है, किस तरीके से कॉपरेट जो है वो किया जा रहा है, सारी सूरत पे बात करेंगे। एसी सिटी अब्दुल समी शेख साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं। शेख साहब बताइएगा, गवर्नमेंट क्या इकदाम उठा रही है जो लोग इस वक्त खैमों में मौजूद हैं? एक ये भी है कि चारपहियाँ भी उनसे वापस ली जा रही हैं, और राशन के हवाले से क्या चीज़ें हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी बिल्कुल, हम फोर्सिबली किसी को यहाँ पर रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन जैसा आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पानी कम हो गया है और पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, स्पेशली जो हमारे करीबी इलाके हैं। हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों के अगर घर वहाँ मजबूत हैं, मौजूद हैं, आप लोग वापस अपने घरों में शिफ्ट हों। हम यहाँ पे आपको राशन भी देंगे। जिन लोगों को राशन नहीं भी मिल रहा तो हमने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई हुई है। हमारे पास सिर्फ इस वाले साइट पे 450 फैमिलीज़ की लिस्ट है। हमारे पास राशन जितना भी आ रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा आएगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन लोगों को हम घर भी पहुंचा के देंगे, कुछ लोगों को हम यहाँ भी देंगे। प्रायोरिटी हमारी उन लोगों की होगी जो कि इस टाइम पे घर वापस शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि हम उनको राशन दें। हम लोग उनको इज्जत के साथ इंस्ट्रक्शन वाला स्टेबिलिटी वाला एलिमेंट शुरू करें। तो कोई नंबर हमारे पास ऐसे आ चुके हैं कि कितने लोग इस वक्त अपने घरों को वापस चले गए हैं और कितने रिमेनिंग हैं, और उनके क्या जो है वो इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व आप लोग ही कर सकते हैं, पर्सनली वो इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो सकते? जी, सिर्फ तहसील सिटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन के 15,000 की थी, जिसमें से हमारा इस टाइम पे एस्टिमेट है 6,000 लोग तकरीबन वापस जा चुके हैं। लेकिन इस टाइम पे हमारे कैंप्स के ज़्यादातर लोग सदर के हैं, वो लोग जिनके थोड़े दूर दूर रकबे हैं, जिनके घर जो है वहाँ पे अभी भी पानी कम नहीं हुआ। इनका पानी कम नहीं हुआ, उनके हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग यहाँ पे बैठे रहें, हम लोग उनको बिल्कुल फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में वहाँ भी पानी कम हो जाएगा, तो फिर उन लोगों को भी वापस जो है रवाना किया जाएगा राशन के साथ और बिल्कुल इज्जत के साथ, ताकि वो वापस जाकर अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू कर सकें। बात है चारपहियों की और पंखों वापसी लेने की, तो वो जो जहाँ पर मामलात ख़राब हैं, जलालपुर है, अलीपुर है, वहाँ पर इसको जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। और साथ साथ जो जहाँ से लोगों को शिफ्ट करेंगे उनको ऐसे नहीं किया जाएगा, बल्कि इन प्रॉपर डाटे के साथ उनको लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, और साथ साथ उनको राशन भी जो है वो दिया जा रहा है। सरगोदा की तहसील बहरा के कदीम शहर के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का मंसूबा महकमा आसार कदीमा पंजाब ने मंसूबे के खदोखाल जारी कर दिए। मंसूबे में फैसल शहर, तारीखी दरवाजों और शहरी ढांचे की बहाली शामिल। सरगोदा विजिटर सयाहत के फरोग और शहरी माहौल की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो। वज़ीर आला पंजाब का विजन, सकाफती फ़ख्र और टूरिज्म डेवलपमेंट का इम्तिसाज। बहरा का तहफ़्फ़ुज़, जिंदा तहजीब को बहाल करने की काविश। दरवाज़ों, मसाजिद और रिहायशी खित्तों की बहाली से कम्यूनिटी को फ़ायदा होगा। महकमा आसार कदीमा का कहना है कि मनसूबा शफाफियत और माहिरीन की रहनुमाई में मुकम्मल होगा। ये मनसूबा पंजाब की तारीखी और सकाफती शनाख्त उजागर करने का बाइस बनेगा। रहीम यार खान सरकारी असातिज़ा की प्रमोशन ताखीर का शिकार। 1.5 साल से जिला भर के असातिज़ा प्रमोट ना हो सके। 22 सितंबर को ई ट्रांसफर ऐप पर राउंड ओपन होगा। अप्लाई तभी मुमकिन है जब सीईओ एजुकेशन प्रमोशन लेटर्स जारी करेंगे। अगर 22 सितंबर से पहले लिस्टें जारी ना हुई तो 250 असातिज़ा मुतासिर होंगे। आमिर भट्टी इस हवाले से आगाह करेंगे। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। प्रीमियर खान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के प्रमोशंस की जो टाइमलाइन है वो सामने आ गई है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो है वो डीपीसी होती है और उसके साथ साथ प्रमोशन लेटर जारी होता है। दोनों चीज़ें अभी तक नहीं, जिसके बाद 1.5 साल से जो असातिज़ा प्रमोशन के मुंतज़र हैं उनकी जो इंतज़ार है वो मज़ीद तवील भी हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़िली चेयरमैन है पंजाब टीचर यूनियन जनूबी पंजाब मोहम्मद मेहराब साहब, उनसे जानते हैं। इस सिलसिले में हमारा मुतालबा पंजाब टीचर यूनियन जनूबी पंजाब और असातिज़ा का मुतालबा ये है कि 22 से पहले हर सूरत डीपीसी होनी चाहिए और इजाज़त होनी चाहिए, और इसी फेज़ में असातिज़ा को जो है वो प्रमोट होना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए। इसको मज़ीद लेट किया तो ये हमारे असातिज़ा और हम जो है इस तशवीश है हमें कि 1.5 साल और लग जाएगा, और उसमें कई असातिज़ा जो हैं वो रिटायर भी हो जाएंगे। इस अमल में टीचर जो है वो तकरीबन 250 टीचर शामिल हैं इस अमल में, और ये पिछले 1.5 साल से इसी इंतज़ार में है कि हमारी प्रमोशन कब होती है। और मैं बताता चलूँ कि इसमें कुछ जो है ना टीचर ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट नज़दीक है, तो हमारा मुतालबा है कि जितनी
जल्दी हो सके इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और इसी फेज़ में इनको मौका दिया जाए कि वो ज्वाइन कर सकें। जी बिल्कुल, 22 से 27 सितंबर तक जो है वो असातिज़ा ई ट्रांसफर ऐप पर जो है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब डीपीसी और उसके साथ साथ प्रमोशन लेटर होगा। मुतालबा ही पेश किया जा रहा है असातिज़ा को कि मजीद जो है वो इनको इंतजार न कराया जाए, डीपीसी और उसके साथ साथ प्रमोशन लेटर जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाए, ताकि असातिज़ा अप्लाई करने के बाद प्रमोट होके ना सिर्फ जो है वो अपने प्रमोट होने के बाद जो मियारे तालीम है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के